ओम ज्ञानं तिरुवन्दस्य चष्मेन चष्मे श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति सम्पदाति वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीसुतं श्रीरं वैष्णवांसं श्रीरूपं साधुनाथं सर्वरघुनाथं तं सैवं साधुवेतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखां श्रीकृष्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी मनमानि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुरक्षा कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावन्यो वैष्णवेयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्री विशेष शून्यवादी पार्षद। इसमें सारे इंपॉर्टेंट मंत्र आ जाते हैं। ये फुल मंगलाचरण है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंटेंट ऑफ समराइज ऑफ भगवत गीता। चैप्टर से लगता है ना पूरा हो गया। Yes. स्टार्ट हो गया। ओके सो लेट मी स्टार्ट। लास्ट टाइम आप नहीं आए थे, विन्नी आई थी, तो वी हैव स्टार्ट। So let me go back to the chapter name. You can read the chapter name. Content of the Gita summarized. Second chapter. Second chapter. Okay. By the second, third, na, it's very interesting. Like that, we can connect it. जो starting में था वो थोड़ा सा डाउटफुल वाला था कि ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं और क्यों हम। संजय वाचा आप विद्या आप पढ़ोगे? Will you read? Yeah, I will read it. Yes. Hare Krishna. Okay. Sanjay उवाच तथा कृपाया वृष्टा श्री कृपा अश्रु प्रणकुलेशकाशनम विषीदंतम हृदयं व्याख्यम उवाक मधुसूदनम। संजय बोल रहा है, संजय बता रहा है ना ये सब धृतराष्ट्र को। दिस इज ऑल द संजय जो साक्षी वो सब बता रहे हैं वहां कृष्ण क्या सोच रहा है और अर्जुन क्या फील कर रहा है, क्या क्या विचार। दिस इज संजय इज अ विटनेस। तो बिकॉज ऑफ संजय वी कम टू नो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज इट वाज ऑल हैपनिंग। भगवान अपने होने का जो है वो सिर्फ अपने भक्त प्योर डिवोटीज को देते, हर एक को नहीं देते। तो वहां जो दैट वाज all the discussions was question answer between Arjun and Krishna. There's nobody knows what is happening. So संजय के पास वो पावर थी कि वो देख सकता था। संजय said, will you start reading? Yeah, I will read. Sanjay said, seeing the Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears. Madhusudana, Krishna spoke the following words. The material compassion, lamentation and the tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudana is significant is this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied.
compassion for the dress of the drowning man, senseless, a man fallen in the ocean of new Yes. science cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does one Who who does does not not know. know this and the laments of their outward dress is called sadra. Is it sudra Shudra. or sadra? Shudra. Shudra. Sudra. Sudra. Okay. Or one who laments unnecessarily. Arjuna was a Kshatriya. Kshatriya. And this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can, despite the Lamentation of the ignorant man. lamentation of the ignorant man, and for his purpose, the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by an analytical Analytical study study of of the material the body. material body and the spiritual soul, as explained by the supreme authority, Lord Sri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed Conception of the real self. conception of the real self. सेल्फ। तो वो बोल रहे हैं मटेरियल जो अर्जुन के मन में कंपैशन आ रहा है, दया आ रही है, तो वी डोंट नो हमें कब कंपैशन करना है, हमें कब ड्यूटी निभानी है। मधुसूदना, मधुसूदना भगवान को मधुसूदना भी उनका नाम है। मधुसूदना इसलिए कहा जाता है कि डिमोन मधु को उन्होंने मारा था। तो ऐसे ही अर्जुन बोल रहा है कि मेरे अंदर का जो डिमोन है ना, उसको भी उसने चार्ज ले लिया है मेरे पर, वो मुझे मेरी ड्यूटी नहीं करने दे रहा। यू किल दैट। हमारे अंदर सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो हमें अपने सतोगुण को रखना है और हमें कब ड्यूटी, कब कंपैशन रखना है, कब नहीं रखना है, तो आप ही हो जो मेरे इसके अंदर के डिमोन को मारोगे, जैसे आपने मधुसूदना का उसका डिमोन मधु का वध किया था। नो वन नोज कंपैशन शुड बी अप्लाइड। हमें पता ही नहीं है ना कि कहाँ पे हमें दया दिखानी है, कहाँ पे हमें स्टैंड लेना है, हमारी ड्यूटी क्या है, हम किस परिस्थिति में हैं। हम तो परिस्थिति भगवान ने लीला का, हमें इमिटेट नहीं करना। इमिटेट मतलब कि भगवान ने ऐसे जाके किया, छल किया, कपट किया, चलो मैं भी करूं, पर मेरी परिस्थिति क्या है, विदाउट नोइंग हिज नॉलेज विच सिचुएशन आई एम स्टैंडिंग, मैं कहाँ खड़ी हूँ, अकॉर्डिंगली आई हैव टू एक्ट। और वो नॉलेज आएगी भगवान की बातों से। हम अपनी बुद्धि से अप्लाई जस्ट टू कंट्रोल, सी कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि ऐसा विद्या ने किया या ऐसा किसी भक्त ने किया। हर एक के लिए laws and regulation are different, that we have to understand। जैसे applied compassion the dress is drawing the, हम gross body में है, हम material body में है, तो हमारी जो conscious है, हम इसीलिए practice करें ना, we are part and parcel of a Lord Krishna, so we have that gunas, so we have to revive, we have to, our focus is to go to sato guna। तो हम उसी consciousness में जाने की हमारी practice है। क्योंकि हम मटेरियल बॉडी में हैं तो हम मटेरियल सोच में फंस जाते हैं। A man fallen in the ocean of a nuisance cannot save simply by rescuing outward dresses. A gross material body, one who does not know the laminate and outward dress is called Shudra। शास्त्र वेदों में जब भगवान ने ये सब इसीलिए किया, पहले जो बोला था हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कैटेगराइज कास्ट में, कास्ट का मतलब डिस्क्रिमिनेट, कास्ट मतलब आपने जैसे कर्म, शूद्रा मतलब जो इस तरीके के काम करेंगे, ब्राह्मण मतलब जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आचार्य पूजनीय, क्षत्रिय जो लड़ेंगे, ऐसे करके ना कैटेगराइज की। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ अ टाइम सब खिचड़ी हो गया सब। तो इसलिए उन्होंने बोला कि शूद्रा एक वैसी श्रेणी में आ जाता है, अगर आप अपने फर्ज को नहीं निभा रहे हो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। तो इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम्हारी सोच ब्राह्मण जैसी हो रही, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कंपैशन हो रहा है, वो फीलिंग हमारी भी आती है, लेकिन तुम कहाँ खड़े हो, तो तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। हम कुछ करते हैं तो वो हमारी खुशी है ना, हमारी इंद्रिय तृप्ति, मेरे को नहीं लड़ना या मुझे नहीं बोलना है। अब कहाँ भगवान ने कहा है कंपैशन, काइंडनेस, हम्बलनेस रखनी है, पर जहां हमारे को अपने फर्ज निभाने हैं तो वो बोलना है, कहना है, लेकिन सतोगुण में आके।
फर्ज निभा, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो उसको लड़ना जरूरी। तो भगवान कह रहे तू क्षत्रिय है, तुझे, तेरा काम है लड़ना, तेरा काम नहीं है चुपचाप बैठे रहना, तेरा काम नहीं है, तू इस चीज का दुख मत कर। तो अभी पर यहाँ तो आज कलयुग में बोलते तो भगवान ने ऐसा किया, चाचा भाई बहन तो सब वो करने लगते हैं। तो आज के युग में हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू टेल टू द अथॉरिटीज, we are not nobody to take a decision, we are nobody to announce any judgment, वी आर नॉट। वहां तो भगवान बता रहे थे हम किस पोजीशन पे खड़े, तो उनको बोल रहे हैं कि तू शूद्रों की तरह बातें मत कर, तुझे क्षत्रिय क्षत्रिय की तरह उसका लड़ना है। एंड अगेन ही सेइंग वन हु लैमिनेट अननेसेसरी, अर्जुन वाज अ क्षत्रिय, तो हमें किसी भी सिचुएशन पे लैमिनेट नहीं करना। सपोज कि एक भक्त की सिचुएशन अलग है, हाँ मैं इस्कॉन में सुनती रहती हूँ, कोई कैसे साधना करे, कोई कैसे साधना, किसी को लिबर्टी मिली है, तो हर एक की सिचुएशन, हर एक की परिस्थिति, हर एक का डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। भगवान ने तो वैसे कोई नियम, कहते हैं सरल भाव से जो मेरे को पूजेगा मैं उसको सरेंडर करता हूँ। लेकिन और वेदों में भी उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। सो वी हैव टू बी आवर ओन सेल्फ, what we are connected, हाउ वी आर कनेक्टेड। जैसे कृष्ण भगवान से कहा गया है ना, आपको अपना रिलेशन बनाना है। किसी के लिए बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, किसी के लिए फादरली फिगर हो सकते हैं, किसी के लिए हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के लिए मदरली फिगर हो सकते हैं, किसी के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के लिए गाइड हो सकते हैं, किसी के लिए गुरु। यू हैव टू डेवलप योर रिलेशन, it whatever you feel from inside, the way you will feel he will reciprocate in the same way। तो वो यही कह रहे हैं कि और दिस इज अबाउट दिस इज, इसे कहा गया जो इनका भगवान ने बोला, इट इज अ गीत, उन्होंने गीत गाया है। तो दिस इज अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन से गुण में हूं, मेरा असली कर्तव्य क्या है, असली असली फर्ज क्या है, मुझे कहाँ कंपैशन करना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, दैट इज अ होल बैटल। हर इंसान अपने में सही है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। आज ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी, मैं सुनाऊंगी कि एक लेडी एक पूछती है कि भाई हमारे साथ कोई गलत कर रहा है और मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैं चुप रह जाती हूँ, पर मेरे माँ बाप के लिए कोई करता है तो मन करता है उनको जवाब दूं, क्या मैं जवाब दूं। तो वो जो एक मुलाकात में आई हुई थी, जो गेस्ट थी, शी वाज अ सीनियर डिवोटी एसएफओ सीएफओ इन रिलायंस इन कैलकाटा। तो मतलब उसमें यही दिखा रहे हैं कि बीइंग अ वर्किंग एंड बीइंग इन मटेरियलिस्टिक लाइफ, डूइंग योर मटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिल, यू कैन बी अ वेरी गुड भक्त। इट्स नॉट इम्पॉसिबल व्हेन यू आर गुड भक्त, सो यू आर गुड एट दैट पॉइंट, क्योंकि मनी इज अ नीड, दैट इज व्हाई यू आर वर्किंग। तो दूसरा सवाल भी बड़ा अच्छा था, तो वो उन्होंने ये जवाब दिया कि वैसे तो हमारा लक्ष्य है सतोगुणी, हमें इग्नोर करना चाहिए, सहन करना चाहिए, यही सिखाया जाता है, इग्नोर और टॉलरेट। लेकिन कोई गलत बात हो रही है, अनटॉलरेबल है, आपको लगता है कि आपको बोलना है, दैट यू हैव टू डिसाइड इट, आपको लगता है बोलना जरूरी है, तो उसी बात को सतोगुणी टोन में आप कह सकते हैं, नॉट एग्रेशन, ओके। इफ इट इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट यही कहा जाता है, इग्नोर, हैव पेशेंस एंड टॉलरेट, दैट इज द एम। बट इफ, पर ये नहीं कहा कि किसी गलत बात को आप टॉलरेट करो और गलत बात पे हाँ 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 करते रहो, नो, दैट यू हैव टू डिसाइड, इज इट रियली रिक्वायर्ड टू स्पीक, इफ यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड टू स्पीक, देन यू हैव टू टेल इट इन अ सतोगुणी तत्व। हम आगे जाएंगे, शायद मैंने बताया था सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी हमारे नेचर होते हैं, हम सभी होते हैं। तो हमें सतोगुणी इज आवर गोल, और उसके बाद आता है विश्व तत्व, जो हम कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं। जब हम सतोगुणी स्टेज में पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम लिबरेटेड होने का आभास Sorry करते to हैं। interrupt you, Pooja. You just tell now what is this Satakudi and this one. सतोगुणी, I हाँ मैं do. ब्रीफ बता देती हूँ, और ये बार बार भी आएगा तो कोई बुराई नहीं है। सतोगुणी वो होता है जैसे खाने पीने में आता है, जैसे हम सिंपल खाना खाते हैं तो हमारे को गुस्सा, जो गुस्सा नहीं करता, You just keep full detail about this हाँ सतोगुणी वो separately. होता है, सतोगुणी वो होता है, सतोगुणी हमारे सब में सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी। सतोगुणी वो होता है जो किसी को हर्ट नहीं कर सकता, जिसको गुस्सा नहीं आएगा, जो हम्बल है, जो काइंडनेस है, जिसमें कंपैशन है, जिसमें प्यार है, जो फुल ऑफ दीज ट्रेट्स है। दैट ट्रेट्स, जब हम इस ट्रेट में आते हैं तो हमारा वो सतोगुणी गुण है। जब हमारे पास भगवान की भी नॉलेज है, मेटेरियलिस्टिक भी नॉलेज है, तो वी आर कंफ्यूज्ड,
वी डोंट नो कि मैं ये कभी हम स्पिरिचुअल उसमें जाएंगे, कभी हम मेटेरियलिस्टिक चीजों में कंफ्यूज, वी आर कंफ्यूज, वी आर नोवेयर, मतलब लाइक सतोगुड़ी से थोड़ा नीचे है ये। फिर सबसे नीचे आता है तमोगुड़ी। तमोगुड़ी में गुस्सा, एग्रेशन, जेलसी, नेगेटिविटी एंड रिवेंज एंड hurting anyone, all full of negativity is called tamogudi. दैट इज वो हम सब में कैसे आता है, जैसे अब एग्जांपल दे तो जो रजोगुड़ी होता है वो तमोगुड़ी और सतोगुड़ी का बीच का होता है, जिसमें वो कंफ्यूज स्टेट में है, उसे नहीं पता कि मैंने ये करना है कि मैंने ये करना है। सपोज कोई कहता है कि भैया भगवान की पूजा करनी है, पहले रोटी तो खा लो, पैसा जरूरी है, तो वो कभी तो पैसा कमाता रहेगा, भगवान को भूल जाएगा। कभी उसको शांति चाहिए तो मंदिर में जाके बैठा रहेगा, तो इज कंफ्यूज, ही डजंट नो व्हाट हैव टू डू इट। तमोगुणी तो सुनना ही नहीं चाहता, वो सोचता है कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, मैं हूं जो हूं, मेरे पास पावर है, मैं कर लूंगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ तमोगुणी का, कि जैसे एक कमरा है, उसमें कुछ सोने की ईंटें रखी हैं और कुछ सोने की ईंटें रखी हैं, तो दैट इज, और उसमें लाइट पड़ी तो अंधेरे कमरे में अलग से दिख जाएंगी सोने की ईंटें, दैट इज अ सतोगुणी। और उसी कमरे में हम एक डिस्को टाइप, कुछ लाइटें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही है, तो द पर्सन इज कंफ्यूज, दैट इज अ रजोगुणी। और जब हम पूरा डार्क कर देंगे, दैट इज अ तमोगुणी। अहंकार, ईगो, लस्ट, ego, बस। तो that is हम तीनों गुणों में होते हैं, हम 100% सतोगुणी में है। हमारे गुणों that की परसेंटेज हाई हो सकते हैं, दैट्स लाइक इस दिस we काइंड have to ऑफ, keep balanced. That is what we have to वी हैव learn. टू टारगेट। जैसे अब मैं इस कॉन्शियस टारगेट दैट my target is to follow my life on a satoguni traits. Suppose when कई बार आपने when we are talking, you are getting anger, you are frustrated, you are disappointed, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको ये पता है ना कि ये तो तमोगुणी ट्रेट है, मुझे नहीं करना। आ भी जाएगा तो ओ, तो मैंने तमोगुणी एक्ट। जब हम बच्चों को डांट रहे हो तो वो है तो तमोगुणी एक्ट, बट बच्चों को डांटना ठीक है, बट वी कैन टेल इन कामली, आवर एम शुड बी कामली, पोलाइटली। ऐसा नहीं कहा है कि हमें किसी को रियलाइज नहीं कराना है या बोलना नहीं है गलत पे, बट इन अ वे सांप की तरह फन निकालना है, डसना नहीं है, सिर्फ समझाना है, मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखना। Yes, मन में that द्वेष, is. हमें किसी की एक बात गलत, सपोज हमारी किसी ने दो बातें नहीं मानी तो हम मान में लेते हैं कि वो अगर सही भी बोल रहा है तो मैं भी दो बात नहीं मानूंगी, दिस इज रॉन्ग। वो द्वेष है, वो द्वेष है। द्वेष तो, ये गुण पे हमें फोकस करना है। जब मैं प्यार, जैसे हम प्यार से बात कर रहे हैं, हम्बल है, तो हमारा वो सत्वगुणी ट्रेड चल रहा है। तो हमें जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं, भगवान के भजन करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, तो जितना हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज आई कॉल 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, उतना हमारा सत्वगुणी ट्रेट बढ़ता है। वी मे फेल डाउन, बढ़ता है, परसेंटेज कैन हाई, बट Without our knowledge, we'll be balanced with विल that. डू प्रैक्टिस ना, कि ये ट्रेट तो पसंद नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने आप को कि भगवान को तो पसंद नहीं, मैं क्यों कर रही हूँ, पर अंदर से लग रहा है बहुत गलत हो रहा है, मन कर रहा है ये, तो ये दिमाग, भगवान को तो पसंद ही नहीं है ये वाली बातें ना। फिर अच्छा कहाँ दिखाना है मुझे, अगर किसी आपको डिसएग्री भी दिखाना है, कहीं गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, यू डिसएग्री, सो दिस वन सेंटेंसेस जो हम बहुत सुनते हैं, either if you can change the situation, you change it. If you cannot, accept it gracefully. Accepted. Yes. That is a simple way, and we have many ways to show your disagree, not with the violence, not with the tamogudi trait, not with the threatening, anger, lust, frustration, fear, ये सारे tamogudi traits हैं। But we say getting fear, getting anxiety is normal. It's not at all normal. When we are connected, the person who's taking care of us, जिसने हमारी सांसें सब कुछ बनाया है और हमें उस पर विश्वास है, तो why anxiety will grab me when I have full of faith and full of this thing? There's no space for anxiety, there's no space for the lust. मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो किस लिए गलत? बिल्कुल ये बात है कि भगवान ने कहा है गलत हो रहा है तो बोलो, पर आराम से बोलो,
without hurting anyone. So this is very interesting chapters are coming. सारे chapter कुछ ना कुछ will you read? 1 minute. श्री The next भगवान one is वाचा मीन्स कृष्ण जी जवाब दे रहे हैं आप. I will read it. No problem. You read it. No, actually, you know, the truth I just want to say, I think I have to put my specs, I think so. So little bit I'm getting. Shall I read it? No. That's why I'm just So just talking get about it, no problem. Then we'll jump to the other call after 5-10 minutes. No. I still have not started to put. I have to go and have a checkup. Oh, okay. So I will read it. Yes. Shri Bhagwan Vacha. Kutsva Kashal Milada Vishme Samu Paristhitam Anayurajashtanam Kirti Rama Arjuna Karma Arjuna. Translation: the Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, why have these impurities come upon you? They are not all befitting a man who knows the value of a life. They lead not to higher planet but to infamy." Higher planet में नहीं जाए. Krishna and Supreme Personality of Godhead are identical. Lord Krishna is referred to the Bhagwan throughout the Gita. Bhagwan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in 3 phases of understanding, namely Brahma or impersonal, all-pervasive, spread Paramatma or localized aspect of the Supreme within the heart, all living entity, and Bhagwan or the Supreme Personality of a Godhead, Lord Krishna, in the Srimad Bhagavatam. This conception of absolute truth is explained as Vedanti ta tattva vedas tvatvam yaj janam advyam brahmati paramatmari bhagwan iti sabhyate. जो भगवान है ऊपर ये भगवान इज एब्सोल्यूट ट्रुथ. इसके ऊपर और उसको 3 तरीके से देखा जाए. पर ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी को ड्यूटी दी थी कि आप सृष्टि की रचना करें, हमारे हृदय में विराजमान है. परमात्मा 3 ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान से हम खुद 3 तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज रियलाइज्ड इन 3 phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of absolute truth are expressed as a Brahma, Paramatma और भगवान. हम भगवान की बात कर रहे हैं तो हम भगवान वाले डिवोशन. These 3 divine aspects can be explained by example of the sun, which also 3 different aspects, namely the sunshine, the sun surface, and the sun planet itself. जैसे वैसे एक्सप्लेन करूंगी. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. One who study the sunshine only in the primary student, one who understand the sun surface is the further advanced, and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary student who are satisfied with the simply understanding the sunshine, it's a universal pervasiveness and the glaring influence of its impersonal nature, may be compared to those who can realize only the Brahma feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal feature of the supreme absolute truth. Therefore, the bhakts or the transcendental who have realized the Bhagwan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalist. Although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, the sunshine, the sun disk, and the inner affair of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the student of the 3 different phases are not in the same category. Do you understand this story? Yeah. It's very nice. है जिसे ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा एंड भगवान. तो जैसे सन है तो हर एक का फीचर, जब सनलाइट पड़ रही है एनर्जी एक ही है, तो उसके लिए सूरज का काम अलग है, और उससे आगे जाता है वो प्लैनेट के, तो उसके लिए अलग है. जिसने पूरी तरह से समझ लिया वो फुल्ली ट्रांसेंडेंटल है. हम गलत किसी को नहीं कह रहे, बट दिस इज अ फैक्ट. भगवान से कनेक्ट होना, उनके प्यार की प्राप्ति पाना, उसमें आनंद रहना,
it's not easy. That we need to understand, and very few are fortunate who can understand. Some people use this knowledge for the material benefit. Everything is coming from him. Everything is coming from him. So this is the example कि जैसे एक सूरज रोशनी में अलग काम कर रहा है, प्लैनेट पे अलग काम कर रहा है, उसके पास चले जाओ अलग काम कर रहा है, वैसे ही हम इंसान हैं. हम जितनी दूर बैठे हैं उतनी हमारी नॉलेज है, उतनी जिज्ञासा है, उतनी हमारी समझ है. You understand this paragraph now? Yeah. The Sanskrit word Bhagwan is explained by the great authority Prasanna Muni, the father of Vyasadeva. व्यासदेव ने भागवतम लिखी थी, बोली थी, और गणेश जी ने लिखी थी. Prasanna Muni, the supreme personality of the who possess all riches, all strength, all fame, the all beauty, all knowledge, and all renunciation is called Bhagwan. There are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned, and very much detached, but no one can claim that possess all riches, all strength, etc. entirely. Only Krishna can claim his, because he is the supreme personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, or Narayana, can possess opulence as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in a Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. No one is equally to or above him. He is a Parimal Lord or Bhagwan, known as Govinda. He is the supreme cause of all causes. वो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने खुद लिखी है. जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बोला ये एक है, बट एक होने के साथ साथ भी वो भी इक्वल नहीं है. कंप्लीट फॉर्म भगवान इज नारायणा श्री कृष्णा ओनली. ही इज अ कंप्लीट रिचेस. कहना कि वो सारी चीजें भगवान के पास है, ब्यूटी, फेम, स्ट्रेंथ, तो वो भगवान है. यहाँ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिस इंसान के पास ये सब है, तो वो क्या भगवान हो सकता है? वो नहीं हो सकता, बिकॉज वो डिटैच है, वो नहीं हो सकता. ईश्वरे परमा कृष्ण सच्चदा आनंद विग्रह आनंद आदि गोविंदा सर्व कारणा कारणम. सारे कारणों के कारण वही है. ही इज द कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस. ऑल कॉजेस. ईश्वर परमा कृष्णा, वही कृष्ण है. Recording is happening now. It's happening. There are many personalities posing of quality of Bhagwan, but Krishna is the supreme because one can excel him. He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is a Parimal Lord, Govinda, and the causes of all causes. In the Bhagavatam, also there is a list of incarnation of the supreme personality of a Godhead, but Krishna describes the original personality of Godhead, from whom many incarnation of personality of Godhead expanded. उनके बहुत अवतार हुए हैं, बहुत हुए हैं. उनकी कॉन्शियसनेस का परसेंटेज लेवल ऊपर नीचे रहता है, but the full form is only श्री कृष्ण अवतार. और जैसा कि पुराणों में भी लिखा हुआ है, all the list of incarnation God is submitted here in either plenary expansion or part of plenary expansion of supreme Godhead. But Krishna is the supreme personality of Godhead himself. Therefore, Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahma. In the presence of a supreme personality of Godhead, Arjun lamentation for his kinsman is certainly upcoming, and therefore Krishna expresses surprises with the word kutha, wherefrom. Such impurities were never expected from a person belonging to a civilized class of men known as Aryana. वो आर्यन है. The word Aryan is applicable to the person who knows the value of a life and have a civilization based on spiritual realization. Person who are led by the material conception of life do not know that the aim of a life realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagwan. They are captivated by the external feature of material world. Therefore, they do not know what the liberation is. Person who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryan. Although Arjun was a Kshatriya, he was deviating from the prescribed duty by declining to fight. This act of cowardice is described as a befitting the non-Aryan. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it even one give one of the opportunity to become famous in the world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjun for this kinsman.
Beautiful, beautiful. ना It is. उन्होंने इतने अच्छे से हर चीज को समझाया कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है। कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का ज्ञान काम है आदेश मानना और आज्ञा देना। अब जो जो बाहर जाके लड़ते हैं हमारे सोल्जर हैं, तो वो लड़ रहे हैं और जो शत्रु है जो उन्हें वार कर रहे हैं उनको वार करने तक वार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो वहीं पर वार करेंगे, ये नहीं है वो सिटी में आके कोई गलत करेगा उसको शूट कर देंगे। उनमें भी हृदय है, कंपैशन है, सिविलाइजेशन है। कहाँ कब कौन सा गुण करना है ये देखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। आज हमारे घर में कोई चोरी कर रहा है, चोर गया, तो हम उसको सजा देके उसको उल्टा सीधा बोल के या उसको अपनी भड़ास निकाल के हम उसका न्याय नहीं करेंगे। हम वो हमारा काम नहीं है। वी विल टेल टू द अथॉरिटी इफ वी कैन चेंज दैट पर्सन। इट ऑल डिपेंड द सिचुएशन, विच सिचुएशन वी आर, how we can make it better humbly and calmly. So okay, I will disconnect it before it disconnected itself. So I'll connect Yes, it in the yes. second part, huh? Okay, okay, okay. Second Okay, idea. okay, okay.